So it is article 10.3.4. Here line L is cutting y-axis at the point say A. Y-axis पर x0 होता है and this distance is say C. So coordinate of the point A are 0, C, and slope of the line is given as m. Okay. So equation of the line L will be y minus y1, that is C, is equal to x minus x1 0 and slope here m. इसको A से पास कराया 1 point form से. Okay. So which implies y minus c is equal to mx, which implies y is equal to mx plus c. So it is equation of the line L in intercept form. इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं और यहां पर m स्लोप ऑफ द लाइन है. ओके. तो किसी भी जनरल इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है और आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9 अपॉन 5. तो जो x का कॉफिशिएंट है दैट विल बी द स्लोप. तो m विल बी माइनस 3/5. इस तरह से किसी भी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं लाइन की. यहां पर a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट एंड b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है. L लाइन है, x एक्सिस को काटती है a0 पर से पॉइंट A और y एक्सिस को काटती है 0b पर. इसको मान लेते हैं पॉइंट B. ओके. तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे 1 पॉइंट फॉर्म से. y माइनस y1 a से पास कराएंगे सो 0, x माइनस x1 दैट इज a और स्लोप ऑफ AB दैट इज y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. So it will be b minus 0 upon 0 minus a, which implies y is equal to b upon minus a multiplied by x minus a in bracket, which implies minus ay is equal to bx minus ab. We can write this as bx plus ay is equal to ab. Now dividing both sides by ab, okay, we get x upon a plus y upon b is equal to 1, which is required intercept form. Okay, x upon a plus y upon b is equal to 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई. x के नीचे हमारा इंटरसेप्ट है x का और y के नीचे इंटरसेप्ट है y का. ये यहां पर डायग्राम में शो किया हुआ है फिगर में. दिस इज x इंटरसेप्ट स्मॉल ए और y एक्सिस को ये b डिस्टेंस पर काटता है तो इट इज y इंटरसेप्ट स्मॉल b. ओके. नेक्स्ट, normal form. Normal form is given by x cos omega plus y sin omega is equal to p, where omega is the angle subtended by the perpendicular with the positive direction of x-axis and perpendicular is drawn from origin to the line. Okay, तो आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल OAM cos omega is equal to base upon hypotenuse, so OM upon OA, that is OM upon P, which implies OM
is equal to P cos omega, and sin omega is AM upon OA, which is equal to AM upon P, which implies AM is equal to P sin omega. Therefore, coordinates of the point A are P cos omega and P sin omega. Now, slope of OA, slope of OA is equal to P sin omega minus 0 upon P cos omega minus 0, which is equal to sin omega upon cos omega. So, therefore, slope of लाइन L, अब लाइन L जो है वो OA पर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस विद नेगेटिव साइन, सो माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा. अब हमारे पास लाइन का स्लोप है और पॉइंट है लाइन के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L विल बी y माइनस y1, ए से पास कराएंगे p साइन ओमेगा, एंड x माइनस x1 p कॉस ओमेगा, 1 पॉइंट फॉर्म से, और यहां पर स्लोप आएगा, तो स्लोप हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, सो विच इंप्लाइज y साइन ओमेगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x कॉस ओमेगा माइनस माइनस प्लस p cos square omega, which implies x cos omega plus y sin omega is equal to p sin square omega plus p cos square omega. We can take p common, so it is sin square omega plus cos square omega. Now sin square omega plus cos square omega is 1. So we have x cos omega plus y sin omega is equal to p. So it is our required normal form, okay, where omega is the angle subtended by the normal with the positive direction of x-axis and p is the perpendicular drawn from the origin to the line. So it is a required normal form. Here omega is the angle subtended by the normal with the positive direction of x-axis and p is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line. तो ये आपको मेमोराइज करनी है. नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. So ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real constants such that a and b are not 0 simultaneously. So it is general equation of the line. If you draw the graph of this line, that will always be a straight line. Example, 3x plus 5y plus 7 is equal to 0. So you can take y is equal to minus 3x minus 7 upon 5 and you can make the table. Put the values of x, you will get the values of y. तो 2 पॉइंट लेकर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y वेरिएबल में
स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जनरल इक्वेशन है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। So y from here will be minus ax minus c upon b. Okay. So it is mx plus small c, where m is minus a by b and small c is equal to minus c by b. तो आपने देखा कि m की वैल्यू यहां पर माइनस a बाई बी है, which is slope, which is nothing but minus coefficient of x upon coefficient of y। लाइन का स्लोप आप इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, m इज इक्वल टू दिस। सपोज वी आर गिवन विथ 3x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, दैट विल बी माइनस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। x का जो कॉफिशिएंट है वो स्लोप होगा, तो स्लोप आप लिख सकते हैं -3/5, ये स्लोप है। और y एक्सिस को ये काटेगी 0.9/5 पर, इस पॉइंट पर y एक्सिस को काटेगी। c यहां पर डिस्टेंस है y एक्सिस पर उस पॉइंट का जहां से लाइन पास करेगी। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, which implies ax plus by upon minus c is equal to माइनस सी अपॉन माइनस सी। दोनों तरफ माइनस सी से डिवाइड कर दिया, इट विल बी a अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस b अपॉन माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी अपॉन a and plus y upon minus c upon b is equal to 1. That implies x upon small a plus y upon small b is equal to 1, where small a is equal to minus c by a and small b is equal to minus c by b. Okay, so ये आपने देखा कि इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अगर आपको एक इक्वेशन दी है 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 9। अब दोनों तरफ माइनस 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि राइट साइड में आपको 1 लेके आना है, और ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 3 प्लस y अपॉन माइनस 9/5। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट और y के नीचे y का इंटरसेप्ट। तो यहां पर आप देखेंगे x एक्सिस को ये लाइन काटेगी -3 0 पॉइंट पर, और y एक्सिस को ये लाइन काटेगी 0 -9/5 पर। तो इस तरह से हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया आपको। नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म। तो आप इसको लिखेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। तो इट विल बी ax प्लस by अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, and here also we'll divide this by same quantity, a square plus b square under the root. Okay, so you can write this as a upon a square plus b square under the root x plus b over a square plus b square under the root y is equal to c a square plus
बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये कॉस ओमेगा की वैल्यू है, ये साइन ओमेगा की, और यहां पर ये पी है। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में ओमेगा बन सकता है। तो कॉस ओमेगा एक्चुअली होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस, सिमिलरली साइन ओमेगा विल बी प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस। और पी परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो हमने देखा कि कोई भी जनरल इक्वेशन लाइन की अगर है तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये फार्मूला होता है। इसका याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। सपोज एल इज ए लाइन, तो इसकी इक्वेशन आप लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बाहर यहां पर लाइन के कोई पॉइंट है पी, x1 y1, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट इज पी एम एंड दिस डिस्टेंस इज से डी। तो ये डी डिस्टेंस बराबर होता है, ये पॉइंट को इस लाइन में यहां पर पुट करेंगे याद करने के लिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड ले लेंगे। और इफ डिस्टेंस इज 0 तो इसका मतलब यह है कि पी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा। ओके, अगर आपको चेक करना है कि पी पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो ये डिस्टेंस 0 होगा। आप लाइन की इक्वेशन में भी पॉइंट को पुट कर देख सकते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे? सो लेट अस सी दैट। लाइन एल की इक्वेशन ये है, वो क्यू पॉइंट पर काटती है एक्स एक्सिस को और आर पॉइंट पर काटती है वाई एक्सिस को। तो लाइन की इक्वेशन आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एट एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है हमेशा। सो देयर फॉर ए एक्स प्लस बी इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करी, प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। देयर फॉर क्यू पॉइंट जो है वो आ गया माइनस सी बाई ए और y कोऑर्डिनेट 0। तो ये क्यू पॉइंट है जहां पर लाइन x एक्सिस को काटती है। इसी तरह से एट y एक्सिस x 0 होता है, तो लाइन की इक्वेशन में यहां पर हम x को 0 पुट कर देंगे। सो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। देयर फॉर आर पॉइंट आ गया x 0 और y कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई बी। तो आर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर लाइन y एक्सिस को काटती है। तो इस तरह से हमारे पास q और r पॉइंट आ गए। ठीक है, अब कोई पॉइंट लाइन से अलग दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहां से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जिसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m है, इस परपेंडिकुलर को हमने कहा d। ओके, pm डिस्टेंस इज d। तो अब हम ये d डिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे। तो यहां पर हम एरिया की कंसेप्ट लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू विल बी हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। ओके, तो बेस आर क्यू तो डिस्टेंस फार्मूले से ले लेंगे और हाइट उसकी डी हमें दे रखी है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू will be equal to half RQ distance into D, which implies
1/2 RQ into D is equal to area of triangle PRQ. So 1/2 P के कोऑर्डिनेट रखेंगे x1 y1 1, R के कोऑर्डिनेट 0 माइनस C/B 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स -C/A 0 1। ओके, और RQ हम डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा कैसे। सो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज D इज इक्वल टू 1/RQ, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। x1 माइनस C/B माइनस 0 माइनस y1 0 प्लस C/A प्लस 1 0 माइनस C² ओवर AB। RQ distance will be minus C/A minus 0 whole square plus 0 minus minus plus C/B whole square under the root, which is C square by A square plus C square by B square under the root. Okay. We will put this value of RQ here. So 1 over C square by A square plus C square by B square अंडर द रूट, ये RQ की वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा -CX1 ओवर B माइनस CY1 ओवर A माइनस C² ओवर AB, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर C, इट इज A² प्लस B² अंडर द रूट, और यहां पर आ जाएगा A इंटू B, माइनस C कॉमन ले लिया यहां से, सो 1/B x1 प्लस y1 ओवर A माइनस बाहर गया C ओवर AB। ओके, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB अंदर चला जाएगा, तो यहां पर आएगा 1 ओवर A² प्लस B² अंडर द रूट, AB अंदर जाएगा तो B कैंसिल हो जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C। ओके, एंड ये माइनस साइन है, इसका मॉड ले लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी हैव D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A² प्लस B² अंडर द रूट, मॉड ऑफ दिस। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज 2 लाइन्स आर गिवन, यहां पर लाइन 1 है, से AX1 प्लस BY1 प्लस C इज इक्वल टू 0 C1, एंड लाइन 2 आप लेते हैं AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज यहां पर ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम पहली लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, से D1, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी 0 प्लस C1 अपॉन A² प्लस B² अंडर रूट मॉड ऑफ दैट दिस। ओके, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा C1 अपॉन A² प्लस B² अंडर रूट। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट D2, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन 2। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहां पर,
Clear? It is D1 and it is D2. So it will be 0 plus 0 plus C2 over A square plus B square under the root. Mod of this, that will be C2 upon A square plus B square अंडर द रूट. ओके, तो इस तरह से D1 और D2 डिस्टेंस आ गया. अब यहां पर डायग्राम से क्लियर है कि D2 डिस्टेंस ज्यादा है D1 से, तो D2 में से D1 घटा देंगे, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि D1 बड़ा हो D2 से, तो इसलिए जो दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी D, और सो D विल बी D1 माइनस D2, मॉड ले लेंगे तो डिस्टेंस हमारा D ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा. तो D1 और D2 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट माइनस C2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट मॉड. नाउ denominator is same, so you can write here C1 minus C2 upon A square plus B square under the root mod. Okay, so D distance between two lines is given by this. Okay, now remember C1 और C2 दोनों यहां पर पॉजिटिव हैं. ओके, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. अगर इनके ऑपोजिट साइन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इक्वेशन आपको यही वाली कंसीडर करनी है. ठीक है, सो वी विल डू मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ओवर दीज आर्टिकल्स. So we have covered the article work of this chapter, straight lines.